Good morning, students. I am Megha Agarwal, your computer teacher from Nalanda Public School. As you all know that your online examination are going to held soon, so you all might be preparing for your upcoming examinations. You know, first two chapters are coming in your examination. Few students are messaging me that ma'am, what is the portion of the examination? So I have made you clear that first two chapters are coming in your examination, so you have to prepare first two chapters. Okay, now in the previous video I have given you the explanation of chapter number 1, that is computer history and classification. In that I have explained you the chapter once again quickly, and now I'm going to give you a quick revision of chapter number 2, that is more formatting features in MS Word. Okay, now starting with the chapter. In this chapter we have learned about page margins, how to set page margins, how to customize page margin of your choice. Customize means of your choice. If you have to put margin of your choice, some other specifications, then you can do that also. Then we have learned about page orientation, page size, then setting the multi-column like a newspaper, then column break, page break, then how to create hyperlinks. Okay, so all these things we're going to again revise in this chapter. Very easy chapter, very interesting as well. So starting with page margin. What is page margin? As you all know that in the page layout tab you have an option of margin. As you can see that in page layout tab you have an option of margin. मार्जिन के ऑप्शन को व्हेन यू क्लिक अ स्मॉल एरो इन द मार्जिन, जब इस स्मॉल एरो को आप क्लिक करते हैं, इस स्मॉल एरो को आप क्लिक करते हैं मार्जिन टैब के अंदर, देन इस तरीके का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है. इस मेन्यू में आपके पास स्पेसिफिकेशंस होते हैं. यू कैन सी डिफरेंट स्पेसिफिकेशन, टॉप 0.5 इंचेस, बॉटम, राइट, लेफ्ट, all these different specifications are there. You can select either from these specifications to set the margin, or you can use the option of custom margin. You can see here that this is an option of custom margin, from where you can specify the top, bottom, left and right space of your choice. Okay, so here you can see that in page layout tab you have an option of margin. Under margin you have an option, you have a small arrow like this. When you will click on this arrow, a drop down menu or like this will appear. Here you can see that different customization, different specifications are there. Top 1 inch, top, right, bottom, left of 1 inches, then top, bottom, left, right of 0.5 inches. Like this different specifications are there for setting the margin. If you don't want to put all these specifications, then what you can do, you can custom your margin also. Means you can set the margin of your choice using the custom margin option. You can see here there is an option of custom margin. You can customize your margin. Customize means you can set the margin of your choice. If you want top to be 1 inches, bottom to be 0.5 inches, so you can do that using this option. Okay, so clicking here to set the margin of your choice. What is margin basically? We all have learned पेज मार्जिन, ये मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छे से समझाया है. दैट अ ब्लैंक वाइट स्पेस, ये आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ जो छूटी है, यहाँ छूटी है, यहाँ लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, ये जो ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक वाइट स्पेस है, दिस इज नोन एज मार्जिन. The top side margin is called the top margin, the left side margin is called as the left margin, the bottom is bottom margin and the right side margin is the right margin. Okay, so the blank white space is called as the page margin. As I have told you that you can custom the margin. आप margin को customize कर सकते हैं अपने choice के हिसाब से. जब आप custom margin का option को select करते हैं, आपका इस तरीके का पेज open होता है, जिसमें पहला ऑप्शन होता है आपके पास मार्जिन का. जब आप मार्जिन को सिलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे टॉप, लेफ्ट, बॉटम आ जाता है.
यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको कितना कितना मार्जिन सेट करना है, टॉप में कितना करना है, लेफ्ट पे कितना करना है, बॉटम में कितनी स्पेस छोड़नी है एंड राइट में कितनी स्पेस छोड़नी है। इस ऑप्शन को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। देन ओके पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, टैप करेंगे तो जो स्पेसिफिकेशन आपने यहाँ दिए थे उसके अकॉर्डिंग आपका पेज मार्जिन सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन मीन्स आपको पेज को अपनी स्क्रीन पे या प्रिंट में कैसा डिस्प्ले करना है। आपको वर्टिकली पेज चाहिए या हॉरिजॉन्टली पेज को डिस्प्ले करना है, किस तरीके से आपको पेज को डिस्प्ले करना है, दैट इज योर पेज ओरिएंटेशन। सो पेज ओरिएंटेशन इज Page orientation is the direction in which the document is to be displayed or printed. The two types of page orientation is portrait and landscape. दो टाइप के जो आपके पेज ओरिएंटेशन होते हैं वो कौन से होते हैं? एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है। आप यहाँ ध्यान से देखिए, पोर्ट्रेट मीन्स वर्टिकल एंड लैंडस्केप मीन्स हॉरिजॉन्टल। पोर्ट्रेट मीन्स vertical and landscape means horizontal. कि मैं आने नहीं देगी सकते मुझे, नहीं दे रहे ना मम्मी नहाने गई पापा हमको। As you can see here that this is portrait and this is landscape. Portrait is vertical and landscape is horizontal. Okay, where you will get all these options? These options are available in page layout only. As you can see in the screen, in the page layout tab, you have an option of orientation. When you will click on orientation, you will get an option of portrait or landscape. Click the option of your choices. Okay, this is how you can change the orientation of the page. Now coming to page size, you can set the size of the page also. By default जो पेज का साइज होता है वो होता है लेटर साइज. Okay, but you can change the size of your page. Here in the page layout tab you have an option of size. In the size, when you will click on the small arrow in the size group, then you'll get this menu. This menu you'll get, you can select the size. By default जो साइज़ होता है जो हम स्क्रीन पे देखते हैं वो लेटर साइज़ होता है, लेकिन जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं जनरली हम A4 साइज़ में प्रिंट निकालते हैं. यू कैन सेलेक्ट द साइज़ हियर, A4 साइज़. Okay, so you can specify the size for the paper on which you want to print your Word document. This is page size. Okay, now moving to the next topic, that is more page size. और पेज साइजेस होते हैं. आप पेज सेटअप में जाएंगे तो यहाँ पे पेज में और साइजेस आपको मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज सेटिंग टेक्स्ट इन मल्टी कॉलम. मल्टी कॉलम मीन्स जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, न्यूज़पेपर में बहुत सारे ब्लॉक्स बने होते हैं, बहुत सारे कॉलम्स बने होते हैं. इस तरीके की मल्टी कॉलम कंटेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं इन वर्ड. यू मस्ट हैव सीन द न्यूज़पेपर, दे कंटेन द टेक्स्ट इन मल्टी कॉलम. The text is written in more than one columns on the same page instead of single column. As you see the text in normal MS document. From here you can set the multi-column. In page layout group, as you can see on the screen, page layout group में आपके पास एक ऑप्शन होता है कॉलम्स का. इस कॉलम में एक छोटा सा नीचे एरो बना होता है. उस एरो पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं, 1 column, 2 column, 3 column. Click here to open column dialog box and view more column option. आपके पास और भी कॉलम ऑप्शंस मिल सकते हैं जब आप मोर कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करते हो. कैसे मिल सकते हैं? ऐसे देखिए, इस टाइप का. जब आप मोर कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो इस तरीके का बॉक्स ओपन होता है. यहाँ पे और भी कॉलम के ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक किस टाइप का आपको नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए. स्टेप 2 देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए है.
फिर लाइंस आपको चाहिए है कि नहीं, अगर आप लाइन पे क्लिक करते हो तो हर कॉलम के बाद एक लाइन खींची आ जाती है। ओके इस तरीके से ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। व्हेन यू विल क्लिक ऑन ओके, जितना भी कॉलम्स आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया था उतने कॉलम्स आपके पेज में क्रिएट हो जाते हैं। You can see here this is one column, this is one column, this is two column, there is no separation line। यहाँ कोई हमने लाइन पे क्लिक नहीं किया था तो यहाँ लाइन ड्रॉ नहीं हुई, लेकिन जब आप लाइन का स्पेसिफिकेशन लेते हो तो इस तरीके से, जैसे कि इसमें लाइंस ड्रॉ हैं हर कॉलम के बाद, इस तरीके से लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं। ओके नाउ नेक्स्ट इज कॉलम और पेज ब्रेक। कॉलम और पेज ब्रेक मीन्स आप चाहते हो एक कॉलम हमने लिखा या फिर एक पैरा हमने लिखा है, उसके बाद हमको पेज ब्रेक करना है, एक कॉलम बराबर स्पेस छोड़नी है। तो देखिए ऐसा आप पेज लेआउट में ब्रेक का ऑप्शन होता है, ब्रेक के बाजू में एक छोटा सा एरो बना होता है। ये छोटे से एरो पे जब आप क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन आपके पास आते हैं। इन ऑप्शंस में पेज का ऑप्शन होता है, कॉलम का ऑप्शन होता है। आपको पेज ब्रेक करना मतलब एक पेज ही पूरा छोड़ना है, एक पेज ही आप छोड़ना चाहते हो पूरा, कि कॉलम बस एक छोड़ना चाहते हो। तो यहाँ से आप कॉलम सिलेक्ट करते हो तो इस टाइप की एक कॉलम आपका ब्लैंक हो जाता है, एक कॉलम बराबर स्पेस आपकी ब्लैंक स्पेस। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे स्पेस ब्लैंक है बिकॉज हमने यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट किया है। सो the text added in column is adjusted automatically and flows to the next column. You can start a particular text from a new column also. In the same manner you can start a particular text in a new page also. अब देखेंगे new page का एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इस तरीके से, ब्लैंक पेज या न्यू पेज। इंसर्टिंग ब्लैंक पेज, ये न्यू पेज। जब हमने यहाँ पे कॉलम अपना फिनिश किया तो ये देखेंगे ये पूरी स्पेस इनने ब्लैंक कर दी, फिर न्यू पेज से हमारा कंटेंट स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे पूरा पेज ही ब्रेक हो गया, जब कॉलम ख़त्म हुआ तो ये पूरा पेज लीव कर दिया, नेक्स्ट पेज से हमारा कंटेंट स्टार्ट हुआ। अब हम बात करते हैं इंसर्ट अ न्यू पेज की, सॉरी इंसर्ट अ ब्लैंक पेज। अब ब्लैंक पेज हमने कुछ कंटेंट लिखा, हम चाहते हैं बीच में हर एक पेज के बाद, एक टेक्स्ट के बाद एक पेज ब्लैंक ऐड हो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है पेज ब्रेक का ऑप्शन इंसर्ट में। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इंसर्ट टैब में पेज ब्रेक का ऑप्शन हो। जब इस पेज ब्रेक पे आप क्लिक करते हैं तो आप सिलेक्ट करते हैं कि आपको पेज ब्रेक कहाँ चाहिए। तो जब हमने पेज ब्रेक पे क्लिक किया, पहले तो हमने अपना कर्सर लेके गए जहाँ से हमको ब्रेक करना है पेज को, वहाँ पे अपना कर्सर को पुट कर दिया, फिर पेज ब्रेक किया तो एक पेज बराबर स्पेस पूरी एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाता है आपके उस पैरा के बाद जहाँ आपका कर्सर प्लेस था। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएटिंग हाइपरलिंक। व्हाट इज हाइपरलिंक? कोई भी एम्बोस्ड या हाईलाइटेड टेक्स्ट, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दैट टेक्स्ट इट टेक्स यू टू सम अदर पेज, that is known as hyperlink. Hyperlink to a text or picture can provide access to a file or document website directly from your document। मतलब कोई भी हाईलाइटेड टेक्स्ट, लाइक ये लिखा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इस टेक्स्ट को हमने हाइपरलिंक अगर बना दिया है तो ये टेक्स्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आप किसी और ही पेज पे पहुंच जाते हो। सो व्हाट इज़ हाइपरलिंक? जब आप किसी भी टेक्स्ट को या पिक्चर को हाइपरलिंक बनाते हो तो क्या होता है, वो लिंक हाईलाइटेड बन जाती है, वो टेक्स्ट वो पिक्चर हाईलाइट हो जाता है। जब आप उस पर क्लिक करते हो तो वो आपको किसी और वेब पेज पे या आपके ही किसी दूसरे पेज पे लेके जाता है। सो दिस इज़ नोन एज हाइपरलिंक। हाइपरलिंक करना मतलब कि किसी टेक्स्ट को, किसी एक वर्ड को, किसी एक इमेज को दूसरे किसी पेज से जोड़ना, दैट इज़ नोन एज हाइपरलिंक। ओके सो अब देखिए स्टेप्स क्या होते हैं हाइपरलिंक के। पहला स्टेप होता है सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू पुट एज हाइपरलिंक। सबसे पहले तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए जिसको आपको हाइपरलिंक बनाना है। कर लिया हमने सिलेक्ट। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है हाइपरलिंक का। स्टेप 2 में इंसर्ट में ऑप्शन होता है हाइपरलिंक का। जैसे आप उस हाइपरलिंक पे सिलेक्ट करते हैं इस तरीके का एक इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, पहले आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद हाइपरलिंक सिलेक्ट किया। हाइपरलिंक सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे इस तरीके का एक मेन्यू बॉक्स ओपन हो जाएगा। मेन्यू बॉक्स नहीं बट हाँ, इंसर्ट हाइपरलिंक
ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको किस चीज़ से उसको लिंक करना है, उस वर्ड को, इस वर्ड को आपको किस डॉक्यूमेंट से लिंक करना है, वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से आप वो डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में से हमने वो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया जिसको हमको किससे लिंक करना है, इस वर्ड से लिंक करना है। फिर हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा टेक्स्ट कैसा हो गया, इस तरीके का ब्लू इंक हाईलाइटेड पैटर्न में दिखेगा। पहले नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा था, पहले हमारा टेक्स्ट कैसा दिख रहा था, और नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहा था। फिर हमने देखा जब हमने हाइपर लिंक कर दिया तो हमारा टेक्स्ट कैसा दिखने लगा, हाईलाइटेड टेक्स्ट दिखने लगा। जब आपने इस टेक्स्ट पे क्लिक किया, व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट, नाउ दिस टेक्स्ट विल टेक यू टू दिस पेज। जब हमने इस टेक्स्ट पे क्लिक किया, जब हमने इस टेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये पेज हमको कहाँ ले गया, ये टेक्स्ट हमको इस पेज पे ले गया। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया है, इस टेक्स्ट को हाइपरलिंक कर दिया है। मतलब इस टेक्स्ट पे क्लिक करने से कोई दूसरा ही पेज हमने लिंक कर दिया है, अटैच कर दिया है, कि जब हम इस टेक्स्ट को क्लिक करें तो कोई एक नया पेज ओपन हो जाए। जैसे कि जनरली हम देखते हैं ब्राउज़र वगैरह जब नेट चलाते हैं तो किसी एक लिंक पे क्लिक करो दूसरी लिंक खुल जाती है, फिर किसी वर्ड पे क्लिक करो तो उसका मीनिंग दिखने लगता है। तो इस तरीके से आप लिंकिंग कर सकते हो वर्ड में। So this is how you can create hyperlinks. ओके अगर आपको रिमूव करनी है हाइपरलिंक तो क्या करेंगे, सिंपली उस वर्ड को क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं और रिमूव हाइपरलिंक करते हो तो आपकी हाइपरलिंक रिमूव भी हो जाती है। अब बात करते हैं हेडर एंड फुटर की। हेडर एंड फुटर आर content which appears at the top and the bottom margin of every page in a document. It can be an image, text, page number, date, company name, etc. Header appears at the top margin of the page while footer appears at the bottom of the page. Header कहाँ आता है, पेज के टॉप पे आता है। फुटर कहाँ पे आता है, पेज के बॉटम पे आता है। तो हेडर टॉप पे आता है, फुटर बॉटम पे आता है। सो हेड एंड फुटर कंटेंट विच अपीयर्स एट टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ द पेज, जबकि हेडर हमारा टॉप ऑफ द पेज पे आता है और फुटर हमारा बॉटम मार्जिन पे आता है। ओके नाउ हाउ कैन यू अप्लाई हेडर एंड फुटर, सिंपली इंसर्ट के अंदर आपके पास इंसर्ट ऑप्शन होता है। इंसर्ट के अंदर हमारे पास हेडर एंड फुटर का ऑप्शन होता है। व्हेन यू विल क्लिक ऑन हेडर तो इस तरीके का मेन्यू ओपन होगा, प्री फॉर्मेटेड, प्री डिज़ाइंड। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो किस टाइप का आपको हेडर चाहिए, लेफ्ट कॉर्नर पे चाहिए, राइट कॉर्नर पे चाहिए, बॉटम में चाहिए, सॉरी मिडल में चाहिए, किस तरफ आपको हेडर चाहिए इस तरीके से। लेकिन जब आप फुटर पे सिलेक्ट करते हो तो आप फुटर इंसर्ट कर सकते हो। दिस इज़ हाउ यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर। नाउ कमिंग टू पेज नंबर। पेज नंबर का अलग ऑप्शंस होता है। सिंपली इंसर्ट में ही हमारे पास पेज नंबर का ऑप्शन होता है, जहाँ हेडर एंड फुटर होता है वहीं पे एक ऑप्शन होता है पेज नंबर का। एज यू कैन सी हियर दिस इज एन ऑप्शन ऑफ, ये हेडर का दिया था, ये फुटर का, एंड दिस इज पेज नंबर। पेज नंबर का ऑप्शन रहता है। अब आपको पेज नंबर कहाँ डालना है उस पर सिलेक्ट कर लीजिए, टॉप पे, बॉटम पे, राइट पे, जहाँ भी आपको डालना है उन ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप अपने पेज में पेज नंबर डाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉइंग टेक्स्ट बॉक्स और इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्यों डाला जाता है, किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए, किसी स्टेटमेंट को, किसी फ्रेज को हाईलाइट करने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं। अ टेक्स्ट बॉक्स इज ग्राफिकल एलिमेंट इन वर्ड। A text box is a graphical element in Word. A text box is a way to make a block of text stand out from the rest of the document. अब इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट टैब पे जाएंगे, टेक्स्ट ग्रुप में क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स बटन। टेक्स्ट, ये देखिए इंसर्ट ग्रुप में आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन होता है। इसमें भी कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट बॉक्सेस बने रहते हैं, उसमें से आप जो टेक्स्ट बॉक्स चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को यहाँ पे ऐसे पेज पे क्रिएट हो जाता है टेक्स्ट बॉक्स। इस तरीके से उसमें आप टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ ड्रॉइंग द टेक्स्ट बॉक्स।
You can insert, instead of inserting the text box from the list, you can draw the text box also. The steps to draw the text box are: on the insert tab, text box group, click on the text box button, click on the draw text box option. Simply देखो कुछ प्री फॉर्मेटेड होते हैं, कुछ आप ड्रॉ कर सकते हो अपनी चॉइस से। तो प्री फॉर्मेटेड में डिफाइंड पैटर्न्स होते हैं कुछ, उनमें से सिलेक्ट कर लो। आइदर यू क्रिएट योर ओन by simply selecting the option of draw text box. Okay, now next is डिलीटिंग द टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करने के लिए क्या करते हैं? सिंपली द स्टेप्स टू डिलीट द टेक्स्ट बॉक्स आर: क्लिक ऑन द एजेस ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, मूव द कर्सर, कन्वर्ट इनटू मूव हैंड्स। ठीक है, सिंपली जो एजेस होती है टेक्स्ट बॉक्स की उसको सिलेक्ट करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं। माउस का कर्सर जब हैंड मूव में, हैंड के सिंबल में बन जाता है, मूव कर्सर कन्वर्ट्स इनटू मूव हैंडल। प्रेस डिलीट की ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम डिलीट की, मतलब कुल मिला के हाउ इफ़ यू वांट टू डिलीट द टेक्स्ट बॉक्स, सिंपली आप जो एजेस होती हैं उस पर क्लिक करो, मूव हैंडल जैसी आता है, आप डिलीट बटन कीबोर्ड से दबा दो, आपका जो भी टेक्स्ट बॉक्स है वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज कुछ स्पेशल सिंबल्स हमको यूज़ में आते हैं कभी कभी टाइपिंग करते समय, जो हमारे कीबोर्ड में नहीं होते। तो वो अगर सिंबल्स आपको इंसर्ट करने होते हैं तो वो सिंबल्स इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है सिंबल्स का। सिंबल्स का ऑप्शन भी हमारी इंसर्ट टैब में ही होता है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये बना है सिंबल का ऑप्शन। ये सिंबल का ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं और मोर सिंबल्स पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पे सिंबल्स, ये देख रहे हैं, फर्स्ट सिंबल, दूसरा स्टैंडर्ड कैरेक्टर्स। यहाँ से अगर आपको सिंबल्स चाहिए आप सिंबल सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ कैरेक्टर्स ढूंढ रहे तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वो सारे सिंबल्स भी इंसर्ट कर सकते हैं जो कि आपके कीबोर्ड में नहीं गिवन है। ओके, सो दिस मच। यस, वन मोर थिंग, डॉक्यूमेंट व्यू। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट व्यू। डॉक्यूमेंट को देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग मोड में आप डॉक्यूमेंट को व्यू कर सकते हैं। MS वर्ड प्रोवाइड डिफरेंट वेज इन विच अ डॉक्यूमेंट कैन बी व्यू डिपेंडिंग ऑन द पर्पज फॉर विच इट इज व्यू। देयर आर रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड, वेब लेआउट मोड, आउटलाइन व्यू एंड ड्राफ्ट व्यू। फर्स्ट इज रीड मोड। रीड मोड में क्या होता है? दिस लेआउट इज यूज टू रीड और राइट अ डॉक्यूमेंट। इन द रीड मोड, the document fills the window and is formatted in magazine style. इसमें आप एक लाइन मार्क कर लीजिए दैट दिस लेआउट इज़ यूज टू रीड और रिव्यू अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने के लिए, रीड करने के लिए हम रीड मोड यूज़ करते हैं। ओके, रीड मोड किस लिए यूज़ करते हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए और रिव्यू करने के लिए डॉक्यूमेंट को हम रीड मोड का यूज़ करते हैं। दिस लेआउट इज़ यूज टू रीड और रिव्यू अ डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट मोड। प्रिंट मोड किस लिए यूज़ होता है? दिस लेआउट इज़ यूज टू क्रिएट एंड एडिट स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए हमारे पास कौन सा मोड होता है? प्रिंट मोड होता है। नेक्स्ट इज web layout mode. This layout is used to create, view and edit pages as they'll appear online when opened in browser. Okay, तो ऑनलाइन व्यू के लिए हमारे पास होता है वेब लेआउट मोड। नेक्स्ट इज आउटलाइन मोड। आउटलाइन मोड क्या होता है? दिस व्यू इज यूज टू क्रिएट, व्यू एंड एडिट आउटलाइंस। एज यू कैन सी हियर, सिर्फ आउटलाइंस देखने के लिए, आपने उसमें क्या डिज़ाइनिंग की है, क्या स्पेसिफिकेशंस किया है, वो सारी नहीं, सिर्फ हमको आउटलाइंस देखना है। तो फॉर दैट वी हैव आउटलाइन मोड। नेक्स्ट इज ड्राफ्ट मोड। दिस व्यू डिसेबल्स अ डॉक्यूमेंट एज कंटिन्यूस टेक्स्ट। पेज ब्रेक आर डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन्स। डॉटेड लाइन्स के द्वारा पेज ब्रेक दिखाया जाता है, बाकी कंटिन्यू लाइन्स आपको डिस्प्ले होती हैं जो भी कंटेंट आपने डाला हुआ है। जूम डॉक्यूमेंट, एज आप देख रहे हो मैं अपने स्क्रीन को जैसे जूम कर लेती हूँ और जूम इन जूम आउट करती हूँ आपको दिखाने के लिए। इस तरीके से आप भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? व्यू के अंदर
इन व्यू टैब में आपके पास जूम का ऑप्शन होता है। ये जूम पे आप जब क्लिक करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि कितना परसेंट जूम करना है, जूम टू 100%, 75% टू 100%। आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो, फिर आप देखते हो स्क्रीन के राइट हैंड साइड में इस तरीके का एक बार आ जाता है। यहाँ पे आप मूव करते हो तो जूम इन होता है, मतलब बढ़ता जाता है जूम का साइज। माइनस की तरफ जाते हो तो आपका जूम कम होता जाता है। जूम इन के लिए आपके पास ये होता है, जूम आउट के लिए ये होता है। दिस इज हाउ यू कैन जूम इन एंड जूम आउट योर डॉक्यूमेंट. So dear kids, you have to read the chapter, mark all the content, all the topics in 1 or 2 lines so that you have a clear concept of the topic. If I am talking about zoom document, then you must have the definition of what is zoom in to get the closer view, or zoom out to see the page at the reduced size. So this is one line definition. If I am talking about read mode, what is read mode? This layout is used to read or view a document. What is print mode? This layout is used to create and edit standard document. This is how you have to prepare. So read the chapter, do the reading, and mark the main lines, main points of each of the topics given in your book. So prepare this chapter, do the reading of the chapter. In the next video I am going to explain the exercises and learn the book exercises. They are very important. Thank you.